सो अभी होपफुली आपका यूट्यूब भी चल रहा होगा लिंक। वी ट्राई टू सेंड इन मैनी ग्रुप्स। हमारे यहाँ पे अभी एक सीआरई प्रोग्राम भी चल रहा है और पैरेलली एडमिशन्स का काम चल रहा है। बट एज प्लान मेंटल हेल्थ वीक वी आर सेलिब्रेटिंग। CRC Patna is organizing like 7 day program, different type of programs and activity on mental health week. And I thought that I should call to renowned resource person who are working actually on ground level on mental health issues. So we should listen them and we should learn something on this mental health week. And on 10th, we are celebrating Mental Health Day. There is a last big program we had. And on 9th, we have one CRE program also approved by Rehabilitation Council of India. Uh, and now I would like to thank to all, first of all, Dr. Gitanjali Kumar ma'am. She is very senior counselor and life skill coach and my mentor also. I am taking a lot of directions, guidelines from madam, and ma'am is having, I think, vast experience in this counseling field and in psychological intervention. And आप जब सुनेंगे तो definitely you will think कि हाँ हम बिल्कुल सही सुन रहे हैं. Again, I will thank to Dr. Pankaj Gupta. Sir is also life skill coach and psycho spiritual counselor. And I read many times. I read a lot of views on Sir portal and like on some Google reviews and बड़ा अच्छा लगता है सीरियसली कि मान लो पेशेंट क्लाइंट्स जो हैं वो किस तरह से अचीव कर लेते हैं किसी की डायरेक्शंस को, और सर उस डायरेक्शन को बखूबी देते हैं और काफी वास्ट एक्सपीरियंस है मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड जो भी। और सर ने जो टॉपिक भी है होलिस्टिक सक्सेस, तो एक बड़ा अलग सा टॉपिक है, डिसाइड किया है। एंड नेक्स्ट इज तनु गेरा मैडम. She is assistant professor and psychologist in James Rohini, and she is also having a lot of experience in disability rehabilitation and psychological intervention. And specifically, like she is dealing with mental health issues and giving practice in one clinic as well. And now that thank to Dr. Jyoti Bajaj who gave this platform to us, and she is coordinating this meeting. And thank you very much, ma'am. And ma'am is also having a great experience with adolescent students. And I think from past 20 years, like she has contacted so many adolescents and gave the right directions for their future and how to handle the mental health issues at adolescent stage. And I welcome to Sarika Thakral, ma'am. Uh, she will talk about mental health and addiction on topic, and she is a clinical psychologist in Gurgaon, and she's like giving services on psychological assessment, psychotherapies, and different counseling processes. So I will not take much time, and I will start with uh, the our director ma'am, जिनकी गाइडेंस से ये प्रोग्राम हुआ। और जो मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक भी है ऐसे कि भी इनिशियली जस्ट हम जो सोच रहे हैं कि हम सीआरसी से बाहर निकल के भी उस चीज को लेके जाएं। मैं वेलकम करता हूं प्रेजेंसी मैम का, एंड मैं चाहूंगा कि मैम इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए आपकी ब्लेसिंग जरूरी है। यस प्रियदर्शनी मैम। थैंक यू। हाँ, थैंक यू मैम। यस यस मैम। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो सीआरसी पटना की तरफ से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये मेंटल हेल्थ वीक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये पूरे एक वीक के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट ये सिर्फ एक सप्ताहांत का नहीं होना चाहिए, ये एक सिर्फ सप्ताह तक नहीं है। ये एक वीक हमारे पूरे जीवन दर्शन को बदल दे,
मैं इसके लिए आशान्वित हूँ, क्योंकि इस पैनल में जो भी रिसोर्स पर्सन है, पूरे हमारे लाइफ स्किल्स, हमारे लाइफ को देखने का नज़रिया वो बदलने वाले हैं, और इससे बढ़कर कोई अच्छी बात नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अनिल का धन्यवाद करती हूँ कि आप, और डॉक्टर ज्योति बजाज मैम का, कि आप ऐसे पैनलिस्ट को लेके आए हैं सीआरसी पटना की तरफ से। हम बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं, और हम चाहेंगे कि ऐसे प्रोग्राम हम लोग और आगे की तरफ लेकर जाए। और आज हम नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, और बिहार को इसकी बहुत ज़रूरत है। खासकर अभी हर तरह की आपदा से भी हम लोग गुजर रहे हैं, अभी जैसे बाढ़ जैसी आपदा आई, और इस बार का जो WHO ने जो ये थीम रखा है, ये पैनलिस्ट को देखने के बाद वो लग रहा है कि हाँ, सचमुच में उस तरफ हम लोग एक दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग उन सारी चीजों को सार्थकता की तरफ लेकर जाएंगे। तो आज के लिए इस विशेष अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे निदेशक महोदय भी कुछ समय में जुड़ेंगे, डॉक्टर ललित नारायण NILD से। तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो आज के प्रोग्राम के लिए वो हमें समय देंगे, और जो पूरे हमारे साथ जो वक्तागण जुड़े हैं उनका विशेष रूप से हम सारे प्रतिभागीगण और सीआरसी पटना के टीम के तरफ से विशेष रूप से हार्दिक आभार करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन सीआरसी पटना और डॉक्टर ज्योति बजाज मैम के सहयोग से हो रहा है। तो एक बार पुनः ये अपॉर्चुनिटी लेती हूँ कि मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। और मैंने आपको पहले भी सुना है, जिस तरह से आप चीज़ों को रखती हैं, वो प्रेजेंटेशन का तरीका बेहद ही काफ़ी बेहतरीन है, और वो हम तक बहुत अच्छे से पहुंचता है, और सारे लोग उससे काफ़ी लाभान्वित होते हैं, और ये लाभ हमेशा हम लोग को मिलता रहे, उसके लिए हम लोग आशान्वित हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस वर्ष की थीम है सेवाओं तक पहुंच, और खासकर मानसिक स्वास्थ्य में, जो आपदाओं में जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें हम लोग जो हमारी सर्विसेज है उसकी अवेलेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी किस तरीके से हो सकती है, वो एक अभी के प्रासंगिक, एकदम अत्यंत प्रासंगिक है। जैसे अभी हम लोग कोविड-19 से गुजरे हैं, ऐसी कई सारी आपदाएं आती रहती है जिसको कि हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते, वो हमारे जीवन का हिस्सा है और उसको लेकर हमें चलना ही है। और जैसे कि महामारी होगी, सामाजिक संघर्ष है, और आर्थिक संकट है, हमारे भौतिक जीवन को तो प्रभावित करते ही है, और हमारे मानसिक और भावनात्मक संबंध को भी पूरी तरह से उस पर हमारा गहरा प्रभाव डालते हैं। और खासकर जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो हमारे जो विज्ञान बंधु है उन पे, चूंकि इम्यूनिटी पहले से ही उनका वीक होता है, तो उन पे ये गहरा असर पड़ता है। तो खासकर उनके लिए हम चाहेंगे कि वैसे माता पिता, प्रशिक्षक गण या रिहैब प्रोफेशनल्स जो PWD के लिए जो काम कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से और उनको सेवाएं दे सकते हैं, किस तरह से हमारे पास और देश के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं पहले से ही उपलब्ध है, उसके बारे में हम लोग आज वो जानकारी दे। दूसरा है कि हम ये समझते हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य है, हम लोगों ने हर चीज में एक्सेसिबिलिटी लाया है, लेकिन और वो सुलभ हो, समावेशी हो, उसके लिए हम लोग प्रयासरत है। और वो कुछ वैसे विचार आए जिस पे हम लोग पॉलिसी लेवल पे भी उस पे काम कर सके। ये मुझे लगता है कि ये प्रोफेशनल्स जो जुड़े हुए हैं, उससे ये हमें सीखने और समझने का आज मौका मिलेगा, और जो आपके अनुभव और सुझाव होंगे ये हमें एक नई दिशा और प्रेरणा भी देंगे। मैं पुनः सीआरसी पटना की तरफ से जो हमारे साथ सारे वक्तागण जुड़े हैं, जिसमें डॉक्टर गीतांजलि कुमार हैं आकार न्यू दिल्ली से, डॉक्टर पंकज गुप्ता सर का जो साइको स्पिरिचुअल काउंसलर है गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं, श्रीमती तनु गेरा मैम हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, JIMS दिल्ली से जुड़ी है, श्रीमती सारिका ठाकुरवाल है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, प्रोफेरा स्मार्ट केयर गुरुग्राम से, और आप डॉक्टर ज्योति बजाज मैम है, डायरेक्टर और सीनियर काउंसलर MIT गुरुग्राम से। मैम और सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और विशेष समय नहीं लेते हुए हम चाहेंगे कि हम सभी आपको सुने और आपकी जानकारी हम तक पहुंचे और उससे हम लोग लाभान्वित हों। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड होपफुली ये पूरा सेशन जो है बड़ा फ्रूटफुल रहेगा, नॉट ओनली फॉर पार्टिसिपेंट्स, फॉर अस आल्सो। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट टू डॉक्टर पंकज गुप्ता सर। बड़े ही स्टार्टिंग से ही जुड़े हैं हमारे साथ में और सुन रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ सर को, बड़ा
बहुत टाइम सर ने दिया है हमें। सर, नाउ योर टर्न सर। क्योंकि आप बहुत मल्टीपर्पज काम, लिटरली होलिस्टिक काम कर रहे हैं आप। तो वो होलिस्टिक जो अप्रोच है वो हमें भी सीखने के लिए मिलेगी आज। और कैसे लाइफ में जो एक वर्ड, क्योंकि सक्सेस एक वर्ड है, बट उस सक्सेस के पीछे जो इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल और जो डेवलपमेंटल जो चीजें जुड़ी हैं, उसका बड़ा इम्पैक्ट है लाइफ पर। तो सर प्लीज। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता। और जो मैंने अपनी लाइफ से मैंने सीखा है, मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एज एन इंजीनियर, और मैंने कॉरपोरेट में 17-18 साल मैंने काम किया है। एंड आई वर्कड एट अ लीडरशिप पोजीशन, अगर आई रीच एट अ लीडरशिप पोजीशन। मैं फ्रेंच कंपनी में एक कंट्री हेड के पोजीशन पे मैं पहुंच चुका था। वहां से मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, लाइफ ने कुछ टर्न लिया। और 2010 से मैं आज एज अ काउंसलर, एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट, एज अ साइको स्पिरिचुअल काउंसलर मैं काम कर रहा हूँ। टोटल एक्सपीरियंस इज अराउंड 32 ईयर्स। जब मैं कॉर्पोरेट में था तो मैंने एक एक्सपीरियंस हुआ हमारा कि हमारे साथ एक इंजीनियर थे। 30-32 साल उस लड़के की एज थी। और जब हम सवेरे ऑफिस पहुंचते हैं तो एक न्यूज़ थी कि उस बच्चे को, उस लड़के को जो है, हार्ट अटैक हुआ है। और फॉर्चुनेटली वो ऑफिस से जब रात को निकल रहा था तभी हुआ। और उसको मेडिकल एड मिल गई और उसको बचाया जा सका। लेकिन उस इंसिडेंस ने मेरे दिमाग में एक ट्रिगर किया कि 32 साल की एज में अगर हमें हार्ट अटैक होता है, हम सब सक्सेस की दौड़ में चल रहे हैं। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स इन माई लाइफ। लेकिन क्या हमें इस कीमत पर सक्सेस चाहिए? आज 32 साल की उम्र में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। हमारे रिलेशंस जो है वो खराब होते चले जा रहे हैं। हैप्पीनेस हमारी लाइफ में नहीं है। और मैं ये देखता हूँ कि ये तीन चीजें ऐसी हैं, जब जो बच्चा पैदा होता है प्रकृति उसको ये तीनों चीजें देकर भेजती है। हर बच्चा हेल्दी है, हर बच्चे के रिलेशंस अच्छे हैं, पेरेंट्स प्यार करते हैं और वो बच्चा खुश है। लेकिन जैसे ही ये बच्चा घर से निकलता है सक्सेस के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, ये तीनों चीजें, हेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप, ये तीनों चीजें धीरे 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 खराब होने लगती हैं। तो एक सवाल मेरे लाइफ में उस समय मेरे मन में आया, क्या हम इस कीमत पर सक्सेसफुल होना चाहते हैं? और यही सवाल मैं आप लोगों से भी पूछता हूं। क्या आप चाहेंगे कि आप या आपके बच्चे इस कीमत पर सक्सेसफुल बने कि उनके पास पैसा तो बहुत हो, लेकिन ना तो उनके रिलेशंस अच्छे हो, ना उनकी हेल्थ अच्छी हो, और ना ही वो लाइफ में खुश हो? और यहां से मेरी एक क्यूरोसिटी स्टार्ट होती है, क्या एक ऐसी सक्सेस पॉसिबल है जिसमें मेरी हेल्थ, मेरी हैप्पीनेस और मेरे रिलेशंस को हमें खराब ना करना पड़े? अगर हम देखें, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि जैसे अगर मुझे एक मकान का मालिक बनना है तो हम क्या करेंगे? तो हम मकान को खरीदेंगे, यानी मेरे पास पैसा है और दूसरे इंसान के पास प्रॉपर्टी है, और हम उसको उसको एक्सचेंज कर लेंगे। यानी हमने मकान खरीदा, यानी जो मेरे पास था एसेट वो मैंने उसको दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या हम सक्सेस को भी परचेज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये हेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप ये तो मुझे नेचर ने दिए थे। और इस कीमत पर अगर हम सक्सेस लेकर आते हैं तो ये बहुत बड़ी कॉस्ट है। एक और तरीका है मालकियत का, और वो तरीका क्या होता है? जैसे पुराने राजा महाराजा एक दूसरे की टेरिटरी पे अटैक करते थे, उसको कॉन्कर करते थे। कॉन्कर करने का मतलब क्या है? कि उसको जीत लेंगे। और जीतने का मतलब कि मैं उसका मालिक तो बनूंगा, लेकिन उसके कंपनसेशन में, उसके बदले में मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। तो यहां से जो मैंने अपने कॉन्सेप्ट का, जो प्रोग्राम का या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैंने नाम रखा है, दैट इज कॉन्कर दी सक्सेस। कॉन्कर दी सक्सेस मतलब मुझे सक्सेसफुल तो होना है, लेकिन अब मैं उसकी कॉस्ट हेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप के फॉर्म में मैं देने को तैयार नहीं। राइट? तो मैं चाहता हूं कि हम सब लोग अपने जीवन में सक्सेस को खरीदे नहीं, परचेज ना करें, बल्कि हम उसको कॉन्कर करें। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्कर दी सक्सेस का। होलिस्टिक सक्सेस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सक्सेस जिसके साथ हेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप भी हमारे
इंक्लूडेड हों। तो हम समझते हैं कि हम दुखी कैसे होते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ और उसका अगर पेट भरा है और डायपर सूखा है तो वो बच्चा खुश है। उसको खुशी सिखाने के लिए कुछ कॉलेज में या कुछ एजुकेशन देने की जरूरत नहीं है। अब ये बच्चा दुखी कैसे होता है? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और इसकी चेतना बाहर जाने लगती है, अब वहां पर सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपनी इमोशन से। और वहां पर बच्चा जो है सुख और दुख को अनुभव करने लगता है। कोई चीज जो उसकी मर्जी की होती है तो खुश होगा, अगर उसकी मर्जी की नहीं होती है तो दुख होगा। और वहीं पर जो अनुभव होते हैं वहां से एंगर है, फियर है, गिल्ट है, ट्रॉमास हैं, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर बैठने लगते हैं। इसके बाद बच्चा और बड़ा होता है, जब उसका लॉजिकल माइंड डेवलप होता है, इंटेलेक्ट डेवलप होता है, वहां पे बच्चा देखता है अपने डिसीजंस लेना। वहां पे कंफ्यूजन्स डेवलप होती हैं, डाउट्स आते हैं, ये करूं या वो करूं। और फिर जाकर उसके अंदर एक एंजाइटी, एक कंफ्यूजन्स, एक डाउट्स जो है उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे एंजाइटी, जैसे जैसे डाउट्स आते हैं, जैसे जैसे कंफ्यूजन आती हैं, ये भी बच्चे के लिए एक दुख का कारण बनती है। अब जब बच्चा बड़ा होता है, अपने शरीर पर आता है, अब वो बीमार भी पड़ेगा, तो ये बीमारी भी दुख का कारण बनती है। और आगे जाता है, जब संसार में, जब कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, बच्चों से मुलाकात होती है। अब बच्चे उसको खिलाते हैं, नहीं खिलाते हैं, उसकी बात मानते हैं, नहीं मानते हैं। यानी अब जो है बच्चा दुखी होना शुरू हो जाता है। सो मैं क्या कहना चाहता हूं कि हम जैसे जैसे एक्शन के वर्ल्ड में जा रहे हैं, वैसे वैसे हम दुखी होते जा रहे हैं। और हमें दुनिया में जाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि सक्सेस जो है वो हमारे अंदर नहीं है। हैप्पीनेस तो हमारे अंदर है, आनंद तो हमारे अंदर है। क्योंकि एक बच्चा जब पैदा हुआ था, उस टाइम उसके पास कुछ भी नहीं था और वो खुश था। लेकिन पैसा, सक्सेस, पावर, ग्रोथ, ये उसके तो अंदर से नहीं मिल सकते। उसके लिए तो संसार में जाना ही है। और जैसे जैसे इस बच्चा संसार में जाना शुरू करता है, वो और ज्यादा दुखी होता चला जाता है। तो फिर आनंदित होने के लिए, हैप्पी रहने के लिए क्या चाहिए? कि वापस से उसकी कॉन्शियसनेस लौट कर उसके अंदर आ पाए। लेकिन आप सब जानते हैं कि कॉन्शियसनेस का स्वभाव क्या है। कॉन्शियसनेस, हमारा ध्यान, हमारी चेतना वहीं जाती है जहां पे कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग मिसिंग टाइल सिंड्रोम भी जान कहते हैं। मेरी जीभ जो है उसी दांत पर जाएगी जो टूटा हुआ है। बाकी सारे दांत पूरा हमेशा मेरे मुंह में होते हैं, और लेकिन वो नहीं जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर मेरे रिलेशंस खराब हैं, तो मेरी चेतना उन रिलेशंस में ही जाकर अटक जाती है। आप खुद देखिए, अगर आपका बच्चों के साथ रिलेशंस ठीक नहीं है, हस्बैंड वाइफ के अगर रिलेशंस ठीक नहीं है, तो उस टाइम ना तो आपका कुछ काम करने का मन करता है, और ना ही आप चाहें तो रिलैक्स कर पाते हैं। अब ये जो चेतना मेरी संसार में चली जाती है, सबसे पहले कहाँ अटकती है? मेरे करियर पे। क्या मेरे पास एक अच्छा करियर है? क्या मेरे पास सफिशिएंट पैसा है? क्या मैं सक्सेसफुल हूं अपनी लाइफ में? और अगर हम सक्सेसफुल नहीं हैं, तो फिर हमारी चेतना कभी भी वापस अपने अंदर नहीं जा सकती। तो कॉन्कर दी सक्सेस में हम लोग जो काम करते हैं, पहले करियर काउंसलिंग करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। सक्सेसफुल होना है तो हमें प्रायोरिटाइज करना है, अपना प्लानिंग करनी है, जो प्लान्स बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए, तो वहां से जो मेरी कॉन्शियसनेस है, मेरी चेतना जो है वहां से मुक्त हो पाती है। और इसके बाद फिर आते हैं हमारे आसपास के लोग, मेरे परिवार के लोग। अगर मेरे संबंध उनके साथ अच्छे नहीं हैं, तो मेरी चेतना वहां से कभी फ्री नहीं हो पाएगी। तो फिर कॉन्कर दी सक्सेस प्रोग्राम में हम लोग बात करते हैं, जहां पर हम लोग चाइल्ड पेरेंट काउंसलिंग करते हैं, कपल काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग्स करते हैं। बहुत सबॉर्डिनेट रिलेशंस हैं जो खराब हो जाते हैं। आज मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के रिलेशंस भी खराब हैं। तो इन सारे स्पेसिफिक चीजों पर हम जब काउंसलिंग करते हैं, पर्पस क्या है? पर्पस सिर्फ ये है कि मेरी चेतना मेरे रिलेशन से फ्री हो पाए। अब आप देखिए, अगर मेरे संबंध सबके साथ मधुर है, अब मेरी कॉन्शियसनेस वहां पर नहीं अटकेगी। और इसके बाद फिर हम आते हैं अपने शरीर पर। तो अगर शरीर में हमारी बीमारियां हैं, और हम सब जानते हैं कि 90% जो डिजीज हैं दे आर साइकोसोमेटिक इन नेचर। तो अगर मुझे एंजाइटी है, अगर मुझे फियर है, अगर मुझे डिप्रेशन है, अगर एंगर है, अगर गिल्ट है,
तो ये सब चीजें हमारे शरीर पर भी इम्पैक्ट करती हैं। तो जब हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं और इन ट्रेनिंग्स के थ्रू जब हम समझते हैं कि कैसे हम उन चुनौतियों के बावजूद भी अपनी एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं, अपने फियर्स को हम एक पॉजिटिव तरीके से यूज कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को हम एक क्रिएटिविटी, एक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, तो फिर इनका इम्पैक्ट भी हमारी बॉडी पर नहीं होता है और फिर वहां से भी हमारी चेतना फ्री हो जाती है। और इसके बाद हमारा इंटेलेक्ट आता है, जहां पे मुझे डिसीजंस लेने हैं, कंफ्यूजन्स हैं। हर इंसान की सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है कि मेरे लिए सही डिसीजन क्या है, क्योंकि डिसीजन तो आज आप लेंगे, लेकिन वो सही है कि गलत है तो फ्यूचर बताए। कैसे मुझे पता लगेगा? ये तो कोई टेक्निक ही नहीं है कि मुझे प्रेजेंट में पता लग जाए कि ये जो डिसीजन मैं ले रहा हूं ये फ्यूचर में मुझे सही रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। और फिर भी हमें डिसीजंस लेने हैं। सो हाउ कैन वी टेक द बेस्ट डिसीजन, द राइट डिसीजन? ये टेक्निक्स, काउंसलिंग्स और ट्रेनिंग्स के थ्रू हम लोग इनको सिखाते हैं। और जब हम अपनी लाइफ में डिसीजंस ले पाते हैं तो फिर एंजाइटी, फिर कंफ्यूजन्स, फिर डाउट्स फिर नहीं होते। और इसके बाद वहां से हमारी जो चेतना है फ्री हो जाती है। और जब वहां से हम और अंदर जाते हैं तो हमारी इमोशंस हैं, हमारे मन में फियर है, एंगर है, गिल्ट है, ट्रॉमास है, जो भी मेरे साथ बचपन से एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उन सब ने मेरे अंदर जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो लोनलीनेस, जो गिल्ट, ये सारी इमोशंस जो मेरे अंदर डाल दी हैं, अब मैं कितना भी चाहूं कि मैं सोच कर काम करूं, लेकिन हम सोच के कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं एक दो एग्जांपल हमेशा देता हूं कि लॉजिकली हम सब जानते हैं गुस्सा करना गलत है, लेकिन फिर भी हम सब करते हैं। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं गुस्से के बेनिफिट्स एज अ विजडम अवेलेबल है। हम सब जानते हैं कि अगर हम सवेरे टाइम पर सोकर उठेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हेल्दी रहेंगे। बट आई सी दैट द फर्स्ट क्राइम ऑफ द डे इज टू स्नूज द अलार्म। कितने लोग हैं जो सुबह उठकर टाइम पर एक्सरसाइज कर पाते हैं? यानी मेरा जो बिहेवियर है वो मेरे लॉजिक, मेरी इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा मेरी इमोशंस कंट्रोल करती हैं। और ये इमोशंस मेरे पूरे पास्ट से आती हैं, जो मेरे साथ बचपन में या बचपन से आज तक जो भी कुछ मेरे साथ हुआ। और जब यहां से भी मेरी चेतना फ्री हो पाती है तब हम जाकर अपने अंदर जा पाते हैं। यानी अब मैं अपनी सोल को एक्सपीरियंस कर सकता हूं, वही एक्सपीरियंस जो गर्भ में एक बच्चा करता है, या पैदा होने के बाद एक छोटा बच्चा जब पालने में है और जब उसका पेट भरा है और डायपर सूखा है तो वो हैप्पी होता है। तो यहां तक जो मैंने बात करी है, संसार से शरीर, विचार, इमोशंस तक, ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है ये डुअलिटी पे चलता है। इसमें कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। यहां तक हम अपनी हैप्पीनेस को सिर्फ मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और कॉन्कर दी सक्सेस में मैं हर क्लाइंट को, हर इंसान को गारंटी देता हूं कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, चाहे पास्ट में कुछ हुआ हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, आप दुखी नहीं हो सकते हैं। आई गिव दिस गारंटी एज एन अनकंडीशनल हैप्पीनेस। और ये गारंटी मेरे सारे टीवी प्रोग्राम्स पे, सारे पॉडकास्ट पे, सारे रेडियो प्रोग्राम्स में देता हूं। सो आई कांट बैक आउट फ्रॉम दिस। मन तक अब तक जो मैंने बात की है, इस लेवल तक हम अनकंडीशनल हैप्पीनेस तक नहीं पहुंच सकते हैं। हम सिर्फ अपनी जो दुनिया में टेम्परेरी हैप्पीनेस है, हम सिर्फ उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और अनकंडीशनल हैप्पीनेस कहां आती है? जब मैं अपनी चेतना में डूबता हूं, क्योंकि वहां पे डुअलिटी नहीं है। वो एक वर्ल्ड है विच इज अ वर्ल्ड ऑफ नॉन डुअलिटी। वो चेतना जो सब जानती है। मेरे साथ दुख होता है, नेगेटिव होता है, लोग बुराई करते हैं, ये भी मैं जानता हूं। और मेरे साथ कुछ अच्छा होता है, कुछ पॉजिटिव है, लोग मेरी तारीफ करते हैं, मेरे पास एसेट्स हैं, ये भी मेरी चेतना जानती है। वहां तक न नेगेटिविटी पहुंचती है न पॉजिटिविटी। सो बिना स्पिरिचुअलिटी के हम अनकंडीशनल हैप्पीनेस में नहीं जा सकते हैं। तो जो मैंने अब तक बात करी है उसमें काफी हद तक काउंसलिंग आती है, जिसमें मैंने काउंसलिंग की मैंने बात करी, चाहे वो रिलेशनशिप काउंसलिंग है, एंजाइटी काउंसलिंग है। इसके बाद जो मैंने सबकॉन्शियस की मैंने बात करी, जहां पे हम अपनी इमोशंस को हील करते हैं, वहां पर हिप्नोथेरेपी का मैं इस्तेमाल करता हूँ। और कुछ रीजंस हमारी अनहैप्पीनेस के आते हैं जो पिछले जन्मों से आ जाते हैं, जैसे टिपिकली आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, फोबियस, जिसको हम लोग बोलते हैं दे आर इरेशनल फियर्स, लेकिन दे डू ऑल्सो हैव अ रैशनल विच इज कमिंग फ्रॉम सम बैड एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट लाइफ।
तो इसको हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हम लोग इसको डील कर सकते हैं। अब आती है द एरिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जहां पे हम ध्यान में डूबते हैं, समाधि में डूबते हैं। जब मेरी कॉन्शियसनेस वापस अपने ऊपर पहुंच पाती है, अब चाहे लाइफ में कुछ भी हो, हम दुखी नहीं हो सकते हैं। आप अपने अनुभव से समझ पाए इसलिए मैं एक दो एग्जांपल्स देता हूं। आपने देखा है कि जब जीसस को सूली पर चढ़ाया जाता है तो जीसस कहते हैं, हे भगवान इनको माफ कर दो, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और हमारा 500 रुपए का नोट होता है तो परमात्मा के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि परमात्मा है भी कि नहीं है। हम राम के जीवन को रामलीला कहते हैं, हम कृष्ण के जीवन को कृष्ण लीला कहते हैं। लीला का मतलब क्या होता है? एक खेल। और ये खेल तभी पॉसिबल है जब मैं अपनी एसोसिएशन, अपनी पहचान अपनी आत्मा के रूप में जब कर लेता हूं। ये जानने से कुछ नहीं होगा, इसको अनुभव करना होगा। और जब हम इसको अनुभव करके फिर संसार के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं तो मेरे लिए भी ये जीवन एक खेल की तरह हो जाता है। और जीसस ऐसे अकेले नहीं है। मीरा को हमने जहर दिया है, अल-इलाज मंसूर के हाथ पैर काटे जाते हैं, उंगलियां काटी जाती हैं, और वो कहते हैं कि हे खुदा तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे लहू से वजू करने का मौका दिया है। गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर गरम तवे पर बिठाता है और गरम रेत उनके ऊपर डालता है, बोलते हुए पानी में उनका शरीर डालता है। इस तरह उनकी मौत होती है और उस समय वो एक शब्द बोलते हैं, तेरा भाण मीठा लागे, जो तू करता है वो अच्छा लगता है। ये लोग पागल नहीं थे। ये लोग जिंदगी को एक नए तरीके से जीते थे। क्यों? क्योंकि इनका एसोसिएशन, इनकी पहचान आत्मा से थी। जब जीसस कहते हैं हे भगवान इनको माफ कर दो, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे थे कि इनके हाथ पांव में कीले ठोक कर इनको जान से मार डालेंगे, लेकिन मेरी चेतना तो कीले ठोकने से नहीं मरने। तो एक पूरा प्रोसेस है। और जो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मैं एक मैसेज देना चाहता हूं वो ये देना चाहता हूं, आप सब लोग अपनी जिंदगी में सफल जरूर बने। क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस तक होना आज के समाज में सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। हम किसी पर डिपेंडेंट होकर तो नहीं जी सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी हेल्थ, अपनी हैप्पीनेस और अपने रिलेशंस का भी ख्याल रखें। ये लाइफ है, इसमें प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सुख और दुख आते जाते रहेंगे। इनको खेल की तरह लेना शुरू करें। और इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सब लोगों को साथ नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और बड़े ही मान लो आपने जो स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ा है, जो एग्जांपल्स आपने दिए हैं, तो रियल लाइफ में उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एंड डेफिनेटली क्योंकि आपका एक्सपोजर उस तरह का है, आप प्रैक्टिकली काम करते हैं ऐसे लोगों के साथ में, उनके जो स्पिरिचुअलिटी है उसको बड़ा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, और उनका लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। सो थैंक यू वेरी मच सर। और थैंक यू, आपने मान लो बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे आप जुड़े, और आगे भी हम आपको परेशान करते रहेंगे। नहीं नहीं। अ, मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे डायरेक्टर, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिनके सौंदर्य से ये सब कुछ हम कर पा रहे हैं। और सर एक्चुअली मॉर्निंग में बिजी थे कहीं बहुत ज्यादा, तो लेकिन बोल रहे थे कि भी मैं अटेंड जरूर एक बार आऊंगा। और सर अभी हमारे बीच में हैं, तो आई वेलकम टू डॉक्टर ललित नारायण सर, और जिनके गाइडेंस मार्गदर्शन पे हम सब ये कर पा रहे हैं। सर वेलकम यू सर। अभी हमने सर जो मेंटल हेल्थ वीक है, वो मेंटल हेल्थ वीक में हमने आज से स्टार्ट किया है एक्टिविटी सर, जिसमें हमने एक ऑनलाइन वेबिनार जो है, काफी रिसोर्सफुल लोग हैं जो मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस किया। और अभी 2 सेशन और हैं हमारे। और एक हेल्दी डिस्कशन की किस तरह से मान लो हमें हमें मेंटली हेल्दी रहना चाहिए मेंटल वेलबींग के लिए। और इसके साथ साथ सर कुछ पोस्टर और पोस्टर कंपटीशन भी हैं अभी कमिंग डेज में, और कुछ क्विज भी हैं। एक मेंटल हेल्थ डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक सीआरई है ऑनलाइन, हमने मेंटल हेल्थ पे ही रिक्वेस्ट करके आरसीआई से लिया है ऑन द स्पॉट। और तो ये इस तरह से पूरा का पूरा एक वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सर। सो वेलकम यू सर, एंड वी नीड योर ब्लेसिंग। अनम्यूट नहीं है सर आप। सर अनम्यूट नहीं, अनम्यूट अनम्यूट नहीं है सर आप। अब आ रही है आवाज? यस सर।
हाँ यस सर, यस सर। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सीआरसी पटना की पूरी टीम को। स्पेशल में मैं डायरेक्टर प्रियदर्शनी मैडम को और अनिल जी आपको, कि जो आपके सौजन्य से ये हमारा नेशनल वेबिनार हो रहा है, जो मेंटल हेल्थ वीक आप मना रहे हो, और जितने भी स्पीकर्स हैं उनको पूरी एनआईडी फैमिली की ओर से और सीआरसी पटना की टीम की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के इस वेबिनार में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मिनिस्ट्री के कुछ ऐसे बिजी शेड्यूल्स होते हैं जिनके कारण मैं सुबह से जुड़ नहीं पाया था 12 बजे, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और अभी आप सबके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं देख रहा हूं कि गीतांजलि मैडम हैं, पंकज सर जिनका मैं अभी सुन रहा था, ये पंकज सर ने भी जितनी मोटिवेशनल स्पीच दिए हैं, और आप उनको हमेशा भी अपने फैकल्टी में और कहीं भी अच्छी अच्छी टॉक हो, साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, उनको मेंटल हेल्थ में हमेशा रखा करो, ताकि जितने हमारे स्पीकर्स हैं, जितने एम्प्लॉयज हैं, सब उनसे मोटिवेट हों। और इसमें मैं तनु मैडम को भी देख रहा हूँ, सारिका मैडम भी जुड़ेंगी, और ज्योति बजाज मैडम, ये सब सारे अच्छे स्पीकर्स को आपने कलेक्ट किया है। तो मैं सबको पूरी एनआईडी परिवार और सीआरसी पटना की ओर से इस वेबिनार की शुभकामनाओं के लिए जो है मैं बहुत बहुत आभार हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आप लोग कंटिन्यू करो, हम थोड़ा वेबिनार में जुड़े जरूर हैं, तो आप इसको प्लीज कंटिन्यू करो। तो थैंक्स ऑल स्पीकर्स एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक्स। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लास्ट में पंकज सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? और मैं ये टीम टीम बन गया है सर, ये एक ऐसे ना, तो मैं तो बड़ा मजा आ रहा है मुझे कि मंथली एक गेट टुगेदर ऑनलाइन हम रखें इस तरह का। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा ये, और सभी स्पीकर्स ने बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही कम टाइम में जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, वो जैसे कहते हैं ना कि गागर में सागर उड़ेलने की सबने कोशिश की है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मैंने भी बहुत कुछ सीखा आप लोगों के साथ मिलकर। और बस इसी तरह हम लोग मिलते रहें फ्रिक्वेंटली। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आप और सारिका मैम और ज्योति मैम तीनों गुड़गांव में हैं सर। अच्छा, ओ ग्रेट। हाँ, आई विल कनेक्ट यू ऑल। हाँ, ये बहुत अच्छा Oh, रहेगा। thank you so much, Anil sir. Yes, yes, definitely. I would love to हाँ, meet all. बहुत अच्छा है, तो हम लोग गुड़गांव में हैं, तो हम तो लोग